بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. اس وقت پشاور یونیورسٹی شعبہ معاشیات میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور یونیورسٹی معاشیات ڈپارٹمنٹ کے استاد پروفیسر ڈاکٹر صنم وگما خٹک صاحبہ، جن کو ایک معاشی امور پر جن کی گہری نظر ہے اور اس شعبے میں اس نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، اور تمام جو ملکی مسائل اور وسائل ہیں اس کے ساتھ خصوصی طور پر پھر خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی آج ہم سے بات کریں گے کہ ہمارے صوبے کے جو معاشی مسائل ہیں، وسائل ہیں نہیں ہیں، یہ بحران کیا ہے، اس حوالے سے ہم ڈیٹیل میں ہم ان سے بات کریں گے. میڈم تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پہلا سوال جیسے کہ میں نے انٹرو میں بتا دیا کہ ہمارا جو خیبر پختونخوا، یہ ہم طویل عرصے سے سن رہے ہیں کہ یہ ایک مالی بحران ہے، یہاں پہ یہ بحران ختم ہونے کا نام نہیں آ رہا. تو یہ مالی بحران کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ چونکہ ایک ماہر معیشت ہیں تو ذرا اس حوالے سے ہمیں بتا دیں کہ بحران کی وجوہات کیا ہیں. دیکھیے، بحران کی وجوہات یہ ہے نا کہ ایک تو آلریڈی کے پی کے جو ہے چھوٹا صوبہ ہے. یہاں پہ ہمارے جو اپنے جو ہم ریسورسز کو جنریٹ کرتے ہیں، ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، وہ آلریڈی کم ہے. جیسے سب سے زیادہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو کراچی یا سندھ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم پنجاب کی طرف جاتے ہیں تو آلریڈی ہمارا تو صوبہ ہے ہی چھوٹا. تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو سورسز آف ریونیو ہے وہ ہے نیرو ہیں، کم ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تقریباً اگر آپ یہ کہیں کہ 100% میں سے 6% ہم اپنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، باقی 94% کے لیے ہم وفاق کی طرف دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، رائٹ. پھر یہ ہوا ہے کہ کچھ لائک اگر میں دیکھوں پچھلے 10 سال کی اگر ہم بات کریں، زیادہ پیچھے نہیں جائیں گے، تو اس میں یہ ہوا ہے کہ کچھ انتظامی وہ ہوئی ہیں، کچھ لیپس ہوئے ہیں. ایسا ہے کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ ایک تو سپوز کیجئے آرگنائزیشنز بہت بڑی بڑی ہیں، ان کو بھی فردر پر انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے. جیسے ایک ڈپارٹمنٹ ہے سینٹرلائزڈ ہے، تو مزید 7 ڈپارٹمنٹس میں پھر ہر ایک کا ہیڈ، ہر ایک کا سیکرٹری. تو اس سے بھی جو ہے ایکسپینڈیچرز، جب آپ کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے تو ایکسپینڈیچرز بڑھتے جاتے ہیں. ایون میں آپ کو پشاور یونیورسٹی کی مثال دوں گی، جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیٹھی ہوئی ہوں، یہاں پر بھی ایون اتنے جو ہے اب اوور اینڈ ابو ہمارے پاس اسٹاف وہ ہوا تھا، ہائر ہوا تھا. تو اس کے پیچھے کچھ پولیٹیکل بھی وہ ہوتے ہیں، کچھ پرسنل بھی مفاد ہوتے ہیں. پھر ابھی تقریباً 3-4 سال پہلے یہاں پہ ڈاؤن سائزنگ کی گئی تھی، تو 500 to 700 امپلائیز کو انہوں نے فارغ کر دیا تھا. پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کورٹ چلے گئے تھے کہ ہمیں کیوں فارغ کیا، حالانکہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ نہیں تھی، آؤٹ آف کورس ہوئی تھی. پھر لیکن وہ کیس جو ہے وہ ہار گئے تھے، اب وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں. تو صرف یہ میں نے آپ کو مثال پشاور یونیورسٹی کی دی. بہت سارے آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں جو ہے ہائرنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، نمبر آف امپلائیز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر تو اس آرگنائزیشن کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بڑھے گا، اور پھر آپ جو ہے فنڈ کی تو پھر آپ کے پاس کمی ہوگی. میڈم ایک ٹرم اکنامکس میں استعمال ہوتا ہے نا کہ فسکل ڈسپلن. اگر ہم خیبر پختونخوا کے تناظر میں دیکھیں تو یہ جو فسکل ڈسپلن کے راہ میں ہمارے صوبے میں کیا رکاوٹیں آئی ہیں؟ دیکھیں، میں یہ بتایا کہ ایک تو ہمارے ہاں نا کہ ابھی جتنے بھی وہ ہوا ہے تو بات افیکٹو مینجمنٹ کی ہے، مطلب ایڈمنسٹریٹولی کچھ لیپس ہوئے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ جیسے گورنمنٹ جو تھی ان کو بھی پتہ نہ ہو، لیکن جو وہ آرگنائزیشنز کو جو چلانے والے ہوتے ہیں اندر سے ان کی طرف سے بد انتظامی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے میں آپ کو ایک سمپل مثال دوں گی کہ ایک تو یہ جو BRT تھا، کچھ ایسے پروجیکٹس تھے گورنمنٹ میں کہ جو وہ لنگر آن ہو گئے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی کاسٹ بڑھی. جیسے BRT انیشلی جو تھا 40 بلین اس کا تھا، لیکن پھر 2-3 دفعہ اس میں چینجز آئیں، ود ان 6 months to 9 months اس میں بار بار چینجز کی گئی نا. تو اس کی وجہ سے اس کی کاسٹ جو ہے وہ 40 بلین تک پہنچ گئی. ایک وہ بڑا وہ ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہمارا جو BRT ہے وہ ابھی بھی ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. اس کا ایئرلی جو ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً کچھ 6 بلین کے قریب ہے. وہ دیکھیے کتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ سبسڈیز بہت دی جا رہی ہے، اس کا جو وہ ہے جو فیئر ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. تو اس طرح سے وہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح اگر ہم اسٹیپ لے اس کا فیئر بڑھا دیں، کیونکہ اگر وہ 6 بلین وہ کر رہا ہے ایئرلی آپ کو لاس دے رہا ہے تو پھر بہت کیا فائدہ ہوا. ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ اس کی سبسڈیز ختم کی جائیں. دیکھیں ایک BRT کا جو وہ ہے وہ 6 بلین لاس ہے، جبکہ ہمارے جو KBK میں 34 یونیورسٹیز ہیں جو کہ بنی ہیں، تو ان کا جو لاس ہے وہ 4 بلین ہے. اب آپ خود سوچیں، دیکھیے BRT کا لاس ہماری یونیورسٹیز کے لاس سے بھی جو ہے وہ زیادہ بھاری پڑتا ہے. پھر یہ ہوا تھا کہ پچھلے اس میں یہ جو صحت کارڈ ایشو ہوا تھا، بڑی اچھی نیک نیتی سے ایشو ہوا تھا، کافی لوگوں کو اس سے فائدہ تھا، لیکن اس کو بھی مس یوز کیا گیا تھا. اس میں چونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلس شامل تھے، تو اس میں سے یہ تھا کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس نے بھی کچھ ملی بھگت کر لی تھی، اور لوگوں کے جو ہے ایک، بلکہ میں ڈاؤن میں پڑھ رہی تھی کہ کوئی دیمر گرہ میں کوئی ہاسپٹل ہے، انہوں نے
पता नहीं कितने टॉन्सल्स के ऑपरेशन शो करके एक महीने में या एक हफ्ते में, एक हफ्ते में पता नहीं कितने करोड़ रुपए जो है रिपोर्ट हुआ था। तो वो उसकी वजह से फिर ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, मैंने यहाँ पर भी ऐसा देखा था, सर्वे हुआ था कि उसमें भी डॉक्टर्स मिले हुए थे। तो वो जो पेशेंट उनके पास जाते थे, बजाय इसके कि वो वहाँ पे उनका ऑपरेशन करते, वो पैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते, उन्होंने उनको प्राइवेट में रेफर कर दिया। और वो प्राइवेट से फिर क्या करते थे, कमीशन लेते थे, मतलब उनको भेजा जाता था। तो अगर वो सपोज कीजिए बिल अगर 40,000 का था तो वो 80 का बनाते थे। तो इससे जो है केपीके की गवर्नमेंट को जो है बहुत ज़्यादा, अब उन्होंने जब इनको रिन्यू किया है, क्योंकि सेहत कार्ड से काफ़ी लोगों को फ़ायदा था, लोग बहुत खुश थे, ठीक है, बहुत सारे लोग इससे बड़े मुतमईन थे। अब जब इन्होंने रिन्यू किया तो चूंकि उनको पता चल गया कि इसमें बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है, तो अब इन्होंने इसको प्राइवेट हॉस्पिटल इससे निकाल दिया है। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है, इससे भी काफ़ी हद तक जो है वो रेवेन्यू आपका जो है वो जनरेट होगा। फिजिकल देखिए डिसिप्लिन में ये स्टेप बाय स्टेप ये काम होता है। सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है जितनी भी आपकी हैं उसको इसका साइज़ छोटा करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है तो या तो वहाँ डाउन साइजिंग करें, एम्प्लॉयज़ की तादाद को कम करें, या ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट्स को आप आपस में मर्ज कर लें। वो मर्जिंग से भी जो है आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, कॉस्ट कटिंग, या उसको रीशेड्यूल कर लें। मतलब देखा जाए कि वहाँ पे कहाँ पे लैप्स आ रहा है, कहाँ पे कमी आ रही है, तो उसको जो है रिशेड्यूल कर दिया जाए। और जो प्रोजेक्ट्स आपको, जैसे सपोज कीजिए, जैसे मैंने आपको बीआरटी की मिसाल दी कि जो प्रोजेक्ट्स आपको डेफिसिट दे रहे हैं, लॉस दे रहे हैं, तो उस पे जो है जो सब्सिडी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। मैडम एक सवाल ये पैदा होता है कि कहने को हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा है कुदरती वसाइल के लिहाज से एक रिच सूबा है, इसमें हाइडल पावर की बहुत ज़्यादा इसमें कैपेसिटी है, फिर इसके पास मिनरल्स की बात हम कर रहे हैं और अब पेट्रोलियम और गैस की भी बात है, लेकिन तमाम तर वसाइल के बावजूद फिर हम कर्ज़ों के बोझ पे दिन ब दिन इजाफा हो रहा है हमारे सूबे पे। अब जो हुकूमत के ख़ुद अपने उसके मुताबिक तो कहते हैं कि 650 अरब जो हैं हमारे ऊपर कर्ज़े हैं, जबकि मज़ीद कुछ कर्ज़ों के मुआहदे हुए हैं। लेकिन जो आज़ाद ज़राए जो कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, खैबर पख्तूनख्वा पे कर्ज़ों का हजम कोई 1000 अरब से ज़्यादा है। तो ये इतना ज़्यादा क्यों होता है कि मरकज़ से भी हमें पैसे मिल रहे हैं, अपने वसाइल भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कर्ज़ों में बेतहाशा इजाफा हुआ है? नहीं, देखिए मरकज़ से हमें सच वैसा अमाउंट नहीं मिल रहा। अगर मैं आपको NFC अवार्ड की बात करूँ, जिसकी जो पॉपुलेशन के बेस पे होता है, तो हमारा जो शेयर था 14% था। उसके बाद जो ज़्यादा बर्डन पड़ा है ना KPK पे, ये मर्जर के बाद हुआ है। जब 2018 में हमने फाटा को मर्जर किया, तो उसके बाद से हमें वफाक ने ये कहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि आपका जो बाकी सूबों से है हम कटिंग करके 3.5 आपको एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है, वो फाटा के उसमें उसके बिहाफ पे। लेकिन अभी तक तो वो 3.5 को तो छोड़ी है, वो जो हमारा जो पुराना हिस्सा है 14% जो है वो भी हमें पूरा नहीं मिल रहा। अच्छा, दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है, अब हमें अभी तक हम वही वो ओल्ड पॉपुलेशन के बेस पे वो हमें वो हिस्सा दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं है। दूसरा ये कि हर साल जो है बजट में आप देखते हैं ना, पेंशन्स में भी इजाफा होता है और सैलरी में भी होता है, तो उससे भी हमारा जो बजट है, बर्डन है, वो जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट गवर्नमेंट जो थी उन्होंने काफ़ी अच्छी, मतलब उनकी नीयत अच्छी थी, असल ये नहीं है कि उनकी पॉलिसीज़ ख़राब थी, नीयत उनकी अच्छी थी, लेकिन असल मसला ये होता है कि जो उसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है ना। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपके अंदर बदनज़मी हो जाए तो वो चीज़ फिर हाथ से निकल जाती है। जैसे इनका जो था पनागा स्कीम बड़ा अच्छा था, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। इसके बाद जो उन्होंने वो दिया था, राशन कार्ड दिया था, ये सेहत कार्ड हुआ, या पिछले रोटी उन्होंने सस्ती की थी। और पिछले जो 2022 में अगर आपको याद हो, बहुत ज़्यादा सैलाब आया था ये नौशेरा, तो जिन लोग का नुकसान हुआ तो उनको काफ़ी इन्होंने मुआवजे भी अदा किए। तो असल बात ये नहीं होती, हम ये नहीं कहते पॉलिसीज़ इनकी वो हैं, बेस्ट हैं, लेकिन असल जो है बदइंतज़ामी का मसला है कि वो चीज़ जो है वो सही तरीके से वो ऑपरेट नहीं हो रही होती है। वो तो स्कीम्स लिंगर ऑन हो जाती हैं, या उसमें मैनेजमेंट चेंज कर दी जाती है, या उसमें अंदर से कुछ पॉलिटिक्स नहीं, रस्साकुशी और टांग खींचना शुरू हो जाते हैं, तो उस वजह से वो चीज़ जो है वो फिर बजाय फ़ायदा देने के हमें नुकसान दे रही होती है। और हमारा जो KPK है उसका मंथली अगर हम देखें सैलरी, मतलब जो सैलरीज एंड पेंशन वो है, वो तकरीबन 54 बिलियन हमारा वो इसके एक्सपेंडिचर है। तो उसमें भी हम ज़्यादातर जो है ये हम ये NFS से और NHP से ही उसको पूरा कर रहे हैं, मतलब अदरवाइज वफाक से तो हमें वो नहीं मिल रहा। और ये मैं आपको दोबारा मतलब ये कहती हूँ कि जब तक हमारे पास फाटा नहीं था 2018 में, हमारा जो था यही हमारा जो वो था ये पेंशन एंड सैलरीज, तो तकरीबन 22 बिलियन थे। अब एकदम फाटा के आने से जो है वो चीज़ हमारी 54 बिलियन और 64 बिलियन ऑलमोस्ट डबल हो गई है।
ऑलमोस्ट डबल होगी। ज़ाहिर है आपके साथ वो पूरी पॉपुलेशन मिल गई है। अब जब आपके साथ फाटा मिल गया है तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वहाँ पे उनको जॉब्स भी दी गई, एक ग्रेड 18 ग्रेड 19 की जॉब्स उनको दी गई बगैर किसी मतलब जैसे होता ना कि उनको हायर किया गया और उनको परमानेंट कर दिया गया, तो ज़ाहिर उनकी सैलरीज भी अब लाखों करोड़ों में जाती हैं। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि जब फाटा इनके साथ मिल रहा था, एक तो ये कहा था कि हम आपका शेयर बढ़ा देंगे 3.5 NFC वार्ड में, बाकी सूबों से कटिंग करके आपको दे देंगे क्योंकि आप फाटा मिला रहे हैं। एक तो उन्होंने वो नहीं दिया, दूसरा वो ये भी कह रहे थे इनसे AIP एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेड स्कीम्स के आप जो है फाटा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, हॉस्पिटल, ज़ाहिर है उसको तो पूरा एक शुरुआत करनी थी, जुडिशरी बनानी होगी, आपको पुलिस स्टेशंस बनाने होंगे, तो वो भी उनको गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने केबीको को टास्क दिया था कि आप AIC स्कीम्स वो शुरू करें। अभी तक उसके मद में भी जो है हमें कोई फंड नहीं मिला है। सही। अच्छा मैडम, एक मईशत के उस्ताद की हैसियत से आप चूँकि पढ़ाते भी हैं अपने स्टूडेंट्स को, वैसे भी आपकी नज़र है, तो ये हमारा जो सूबा है इसकी जो मसाइल की वजह जो है ये इंतज़ामी होते हैं या मतलब सियासी भी, चूँकि मरकज़ में कभी दूसरी सियासी जमाती हुकूमत हो, यहाँ किसी और की जमाती हुकूमत, क्या ये भी एक वजह है बहरानों के सबब के सूबे की जो मालियाती मसाइल दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा भी है, ऐसा ही है, क्योंकि इंतज़ामी तो है ही है, लेकिन ऐसा भी होता है कि जब वफाक की गवर्नमेंट आपकी वफाक और आपके साथ ना लगे उनकी, तो इसका भी मसला होता है। देखिए जब आप उसमें होते हैं ना, एक ही लाइन पे होते हैं, एक ट्रैक पे होते हैं, एक पेज पे होते हैं, तो आपको फंड भी मिलते रहते हैं, आपको सब कुछ होता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब आपके साथ आप वफाक के साथ टसल में आ जाओ, जब आपको लगता है कि पिछले 10 साल से, अभी तो खैर नहीं, जब इससे पहले जो हुकूमत थी वो तो सबकी मुश्तरका थी, लेकिन ये जो उसके बाद जो वो चेंज आया और हमारी निगरान हुकूमत आई, तो उसके बाद से वफाक और उसमें थोड़ी सी रशाकशी स्टार्ट हो गई है। तो इसके बाद कुछ ऐसे भी वो हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे वो कट लगा देते हैं कि ये चीज़ नहीं जानी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, आपने यहाँ पे ये किया वो किया, तो इस वजह से भी जो है चेंजेस आती रहती हैं। देखिए एक इनर्शिया होता है ना, हम कहते हैं कि एक चीज़ जब चलती है तो उसको चलने दें, लेकिन जब आप किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं बीच में तो इसका असरात बहुत दूर रस जाते हैं। अब आप देखें वफाक में जो भी होता है, सपोज कुछ भी वहाँ पे वाक़या होता है, वो वाक़या लाहौर में होता है या कराची में होता है, वो फ़ौरन KPK पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वहाँ किसी के डोर से मौत हो रही है तो वो जो है ये जो थ्रेड है ये KPK से आ रहा है, अगर कोई कुछ भी हो जाता है तो ये सारा नज़ला हम पे गिर रहा है, सारा नज़ला हम पे गिर रहा है, तो ज़ाहिर है फिर वो इस तरह के उसमें भी यही वो करेंगे। मैडम ये एक फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये तमाम मसाइल हैं तो क्या यहाँ पे हम सूबे के लेवल पे इस तरह कोई सिस्टम ये कर सकते हैं कि अपने जो अखराजात और आमदनी में कोई एक बैलेंस पैदा करें, ताकि मतलब जो मालियाती बहरान की अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको थोड़ा मिनिमाइज कम कर सकते हैं, कोई इस तरह का कोई है? बिल्कुल। देखिए एक तो गवर्नमेंट, सबसे पहले तो ये कि हमें वफाक से अपना हिस्सा मांगना चाहिए जो हमारा NEC वार्ड है, जो कि पुराने बेस पे है, जबकि वो पुराना भी हमें नहीं मिल रहा। तो इसके बाद जब फाटा हमारे साथ जम हुआ तो हमारे साथ उन्होंने वादा किया था कि हम आपका जो है शेयर बढ़ा देंगे, तो अभी तक हमें वो भी नहीं मिला, हमें उसके लिए भी डिमांड करनी जो कि बार बार की जा रही है, बार बार उनसे मांगा जा रहा है अपना हिस्सा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऑयल के और गैस के ज़खायर है, ऑयल के ये गैस के कोहाट की साइड कहते हैं तोगे के इलाका है, ऑयल गुरगुरे में जो है हमारे पास काफ़ी ऑयल के ज़खायर है, ठीक है, ऑयल फील्ड है, तो वो सारा ऑयल जो है जिनके साथ माहिदा हुआ था वो कंपनी आई थिंक मोल या इस तरह के नाम से मोल के साथ हमारा माहिदा हुआ था, तो उसमें ये था कि जो भी इंटरनेशनल बैरल होगी उससे थोड़ा सा डिफरेंस करके वो KPK को वो हिस्सा देंगे। अभी तक हमें वो वाला नहीं मिल रहा, हिस्सा भी वो नहीं मिला। तो ये भी है कि हमारे ज़खायर तो उनके पास हैं, लेकिन उस पर जो रॉयल्टी है वो हमें अभी तक जो है ना वो कंपनीज की तरफ से मिल रही है, ना हमें जो है वफाक की तरफ से मिल रही है। तो ये भी है। दूसरी बात है जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो ऑर्गेनाइजेशंस उसमें जा रही हैं, लॉस में जा रही हैं, डेफिसिट में जा रही हैं, या जो स्कीम्स, तो उस पर सब्सिडी ख़त्म की जाए, ठीक है, क्योंकि इस तरह हम नहीं रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हालांकि मैं खुद प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ कि अब हर गली कूचे में एक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है कि देखिए जो यूनिवर्सिटीज़ खोलती हैं, ठीक है, तालीम और सेहत हर उसका वो होना चाहिए हर गवर्नमेंट का, लेकिन उससे ये होता है कि जब तक हम हमारे पास पेशावर या 3-4 यूनिवर्सिटीज़ थी तो हमारे पास स्टूडेंट्स भी आते थे, बल्कि ये उसमें जाती थी, हमारे पास 30-30 करोड़ 50-50 करोड़ का सरप्लस होता था। लेकिन क्या हुआ कि जब हर गली कूचे में जो है पॉलिटिकल मकसद के लिए जो है पॉइंट स्कोरिंग के लिए, वोटिंग के लिए जब यूनिवर्सिटीज़ बढ़ना शुरू हो गई, तो फिर क्या हुआ, सारे स्टूडेंट का फ्लो जो है वो
वहाँ पे चला गया, एक तो हमारा डाइवर्ट हो गया। अब ज़ाहिर है दीर वाला यहाँ क्यों आएगा, चतरा वाले क्यों आएंगे, या जितने भी आपके हरिपुर वाले यहाँ पे क्यों आएंगे, इससे बहुत नुकसान हुआ। एक तो ये नुकसान हुआ कि हमारे पास रेवेन्यू कम हो गया क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ चले गए। दूसरा ये नुकसान हुआ कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन भी बहुत डिक्रीज हो गया, ठीक है, इसलिए कि जो नई नई यूनिवर्सिटीज़ आती हैं तो उसमें वो स्टूडेंट्स भी उस मयार के नहीं होते, स्टूडेंट्स कम होते, टीचर्स भी उसके नहीं होते, तो वो उनसे प्रिविलेज भी लेते रहते हैं, तो वैसे स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रहा है, ठीक है। और एक हमें सोशल इसका बड़ा नुकसान हुआ है कि पहले तो ये था कि अगर एक या दो यूनिवर्सिटीज़ थी तो पूरे KPK से लोग यहाँ पे आते थे, एक दोस्तियाँ बन जाती थी। जैसे आपका चतराल के साथ हॉस्टल में चतराल के भी होते थे, बाजावड़ के भी होते थे, फाटा के भी होते थे, तो आपकी वो नहीं होते एक सोशल सर्कल बन जाता था, लोग एक दूसरे को जानते थे। तो उससे ये भी हुआ है कि जो यूनिवर्सिटीज़ बनी है तो वो जो सोशल सर्कल है वो भी काफ़ी हद तक जो है डिस्टर्ब हुआ है, हम जो है बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चले गए हैं। और एक और नुकसान हुआ है कि जहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज़ खुलती हैं तो सबसे पहले वहाँ पे कोई मतलब वो जहाँ पे वहाँ का जो भी मिनिस्टर है या MNMP है, तो हमारे मतलब मुशाहिदे में भी ये बातें आती हैं कि वो सबसे पहले अपने ही लोगों को और अपने ही उसको वहाँ पे जो है हायर कर लेते हैं। तो एक मतलब इसका ये मकसद ये है कि एक रोज़गार दिलाने का जो है वो ज़रिया बन गया, तो उसके लिहाज से वो रोज़गार के चक्कर में जो है पूरा आपका जो है सिस्टम उन्होंने गर्क कर दिया। मैडम आखिरी सवाल आपसे, मईशत में आबादी का जो इकोनॉमी के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक मतलब जो हमने पढ़ा भी है और ये समझ में आ रहा है, तो मौजूदा सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा की आबादी अब कहते हैं कि कोई 4 करोड़ के करीब या उससे भी ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की जो माली सूरत हाल का वो भी आपके सामने है, तो ये क्या इसको किस तरह वो कर सकते हैं, इस चैलेंज आबादी के चैलेंज से किस तरह ओहदा बरा हो सकती है हमारी हुकूमत? देखिए आबादी के 2 फेस्ड होते हैं ना, एक तरफ तो ये होता है कि अगर आपकी आबादी बढ़ रही है तो वो, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो फिर तो कोई खतरे की बात नहीं, बल्कि वो अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है कि आपके पास लेबर फोर्स होती है, जवान होते हैं, जवानों के बगैर तो आपका मुल्क नहीं चल सकता ना, ठीक है, एक तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी कम है, आपके हालात ख़राब हैं, तो फिर आपके लिए जो है आबादी एक मसला होती है। लेकिन अगर आप देखें हमारी ऑलरेडी एक ठीक है आबादी ज़्यादा है हमारी, लेकिन वो कोई प्रोडक्टिव आबादी नहीं है। अभी पिछले 6 महीनों में 30 लाख नौजवान जो हैं वो बाहर चले गए। इवन मेरे अपनी फैमिली में जो है जितने भी यंग लड़के थे वो सारे, कोई इंग्लैंड कूच कर गया, कोई लग्जमबर्ग चला गया, कोई वो जो है जर्मनी चले गए। तो रीज़न इसकी क्या है कि वहाँ उनको इनकी जॉब्स जो उन्होंने डिग्रीज ली हुई थी उस मुताबिक उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, या अगर मिल रही थी तो वो बहुत कम सैलरीड की थी, जबकि उनको उसी डिग्रीज पे बाहर बहुत अच्छी ऑफर्स हुई। तो ज़ाहिर है किसकी वो नहीं होती, हर एक बंदा अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जो है वो कोशिश करता है, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जाता है। तो मुझे तो लग रहा है कि आबादी का इतना प्रेशर इस तरह से पड़ेगा कि अगर हमारी यंग लॉट सारी इस तरह निकलती रही जो कि निकल रही है, ठीक है, तो अलार्मिंग होगा कि हमारे पास फिर कोई यंग नौजवान नहीं होगा, यहाँ पर सारे बच्चे या बूढ़े होंगे, फिर डिपेंडेंट पॉपुलेशन होगी। तो कमिंग उसमें तो हम और ज़्यादा जो है इस चीज़ को सफ़र करेंगे, और हुकूमत को बहुत सीरियसली इस मौजू को लेना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, सारे ब्रेन ड्रेन बाहर जा रहा है। तो इससे होगा कि हमारे मुल्क में फिर कौन रहेगा, मतलब रेडी वाले रहेंगे, दुकानदार रहेंगे, रिक्शे वाले रहेंगे, इस तरह के लोग रहेंगे। तो फिर हम जो है हमारे पास बिल्कुल प्रोफेशंस की कमी होगी, डॉक्टर्स नहीं होंगे, इंजीनियर्स नहीं होंगे, प्रोफेसर, इवन हमारे प्रोफेसर्स अभी अगर हमें ऑफर आती है तो बहुत सारे चले जाते हैं बाहर। ज़ाहिर है वो भी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ना, कभी कहते हैं पेशावर यूनिवर्सिटी में तनख्वाह है, कभी 3 महीने की नहीं होती, तो ऐसे हालात में किसका गुजारा होता है। तो सब मजबूरी से जा रहे हैं, और गवर्नमेंट को लुक अपॉन इस बात को देखना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा जो है लॉस होगा, मुल्क को भी होगा और सूबों के लिहाज से भी होगा, और हर उस पर जो है ये चीज़। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने हमें अपना कीमती वक्त से नवाजा और सूबे के जो मजमूई जो माशी मसाइल उस हवाले से अपनी गुफ्तगू की, वो एक बार फिर आपका शुक्रिया। थैंक यू सर।